How are you? I'm also doing good. Hello, everyone. I hope everyone is doing good too. And greeting to all. And we appreciate your presence today. So let's just kickstart our session with this great quotation. And investing in mutual funds is like planting seeds of your financial future with patience and consistency. You can watch your wealth grow and blossom. So, a very good evening to the guests. And I, Nandini, the host, would like to take this opportunity to extend a hearty gratitude to each and every one of you present here. And it gives me a great pleasure to extend a warm hellos to every one of you gathered here. And it's a huge honor for us to have someone as caliber present here, involvement on the topic of how to select the right mutual funds. So now there's a few line regarding the topic of event. Mutual fund is a pool of money collected from various investors to investor securities like stocks, bonds, or a combination of both. It's managed by a profession fund manager who aims to generate returns for investors. And today we are gathering here to unlock its secrets. So get ready to discover how to select the mutual funds. And before I proceed further, let me take a brief moment for the introduction of our organization. Sames Welfare Foundation is a registered non-profit organization and is dedicated to social impact across various sectors. We focus on education, particularly skill development and entrepreneurship. Through our initiatives, DG Saksham, we have created training programs in IT, finance, retail, and internship entrepreneurships impacting over 6,000 individuals. And FameLeads, another initiative, empowers women through workshops and stories of successful female entrepreneurs. In just a short time, Saints established itself a force for a positive change, equipping individuals with the skills of employment and promoting women's leadership in various industries. So now let me take this wonderful occasion to public present and welcome Ma'am Apurva, the speaker for the today's international webinar. Welcome, Ma'am. Thank you so much, Nandini. Hello, everyone. A very good evening, and thank you so much for joining. So, अभी हम लोग start करते हैं with how mutual funds work. What are actually mutual funds? हमें कौन-कौन सी बहुत सारी बारीकी होती है जो हमें देखनी पड़ती है. Everyone knows कि म्यूचुअल फंड सही है, बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है, बट कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? Do we really know that? So I'll share a PPT for that. Just let me know if it's visible to you guys. So let's begin कि म्यूचुअल फंड्स में एक्चुअली होता क्या है, what are actually mutual funds, how the whole structure of mutual fund works. So in today's session we'll be discovering all of it. What are the types of mutual funds, how to we invest, what are actually the potential of mutual fund. हमने बहुत सुना होगा yes म्यूचुअल फंड का इतना NAV है, ये ज्यादा NAV का है, तो what is actually NAV? Is really NAV important while selecting a mutual fund? एंड कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देखने चाहिए म्यूचुअल फंड्स को लेकर. सो ये सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले. सो बिफोर I start with कि what are mutual funds. नंदिनी ने बखूबी इसको डिफाइन किया था, and I would take the same point that mutual fund is actually a pool of money जो कि हम लोग ना छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते, छोटे इन द सेंस हु हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी बट क्रेव फॉर अ लार्जर और अ वाइडर or maybe more returns than the traditional investment returns which they get. सभी को पता है FD will give you approximately 6 to 7% return over a year, okay? And that is why one maybe aims to go into mutual funds because हर कोई को स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं होता है एंड वन डजंट हैव टाइम एज वेल टू इन्वेस्ट कि पहले वो सीखे एंड देन इसमें एंटर करे. बट हमें अपने एग्जिस्टिंग सेविंग्स को क्या कहते हैं इसमें ज्यादा रिटर्न्स कमाने की इच्छा तो सभी के पास रहती है. एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया था which was termed as mutual fund. So mutual fund में basically क्या होता है कि जो भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, सपोजिंगली आई हैव 1,000 रुपी कि मैं हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकती हूँ. सम एक्स पर्सन में हैव 500 rupees, y person may have 10,000 rupees that they can invest. But do I really know about the market कि कौन से शेयर में लेना चाहिए या कौन से इकोनॉमी में अच्छा सेक्टर जाने वाला उसके शेयर्स में डालने चाहिए?
we really do not know or also we do not have time. So इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये फंड निकाला जिसमें जो भी ऐसे स्मॉल स्मॉल अमाउंट के इन्वेस्टर्स होते हैं, they want to invest, they can only afford maybe 1,000 रुपी, बट दे वांट कि वो पैसे भी वो ग्रो करे. इसी वजह से ऐसे बहुत सारे लोगों को जब हम कलेक्ट करते हैं और उन सब से एक पैसा लेकर एक जब बड़ा कॉर्पस बनता है, that fund is called mutual fund because वो म्यूचुअली सबसे पैसे लेकर एक फंड बना है, and that fund is invested into the market like equity, bond, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसमें पैसा डाला जाता है. तो हमारा एम होता है कि हमें लगता है कि हम इक्विटी मार्केट यानी शेयर्स बॉन्ड्स में शेयर्स में डालने चाहिए. सो हमारा एम रहता है कि हम वो जो अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, उसे हम शेयर्स में डाल. तो वो एक हुआ. किसी को लगता है कि बॉन्ड्स, आई वांट टू प्ले सेफ, आई डोंट वांट टू टेक सो मच ऑफ बिग रिस्क, बट आई आल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू अर्न अ लिटिल मोर देन व्हाट माय ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट वुड गिव. सो ये सारे म्यूचुअल फंड ये सारे चीजों में पैसे डालते हैं, सारे लोगों से कलेक्ट कर. सो नाउ वी विल गो ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है. सो द पॉइंट of telling you all of these कि वो structure क्या है, so that आप जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो you should be knowing कि वो जिस भी आप फंड में डाल रहे हो क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या वो सही है डालने के लिए या नहीं. सो उसके अगर किसी को भी म्यूचुअल फंड का स्टार्ट करना है, सो दे नीड अ स्पॉन्सर. स्पॉन्सर इज द कंपनी जो ये म्यूचुअल फंड पूरे को सेट करने में या पूरे म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने में हेल्प कर. सो इसका क्या काम होता है कि ये दो एंटिटीज बना. वन इज द ट्रस्ट. Hello. One is the trustee and another is the AMC. Okay, so trustees are basically sponsor. अभी AMC पहले I'll go to AMC. AMC is the asset management company. मतलब हम जो भी पैसा लेते हैं वो असेट बना है, तो उस असेट को कौन मैनेज करेगा. इतना बड़ा फंड होता है 15,000 करोड़ 20,000 करोड़. फिर दैट यू रिक्वायर सम वेरी इंटेलिजेंट पीपल जो इसको मैनेज करे, इस असेट को मैनेज करे. इसीलिए एक कंपनी बनती. दीज आर द पीपल, दे वर्क अंडर द कंपनी एंड दे मैनेज ऑल ऑफ. ट्रस्टी इसलिए बनता है क्योंकि ये सारे लोग म्यूचुअल फंड क्या वो सही तरीके से कर रहा है, आर दे फॉलोइंग सेबी गाइडलाइंस, आर दे डूइंग इट प्रॉपर्ली, कोई चीट नहीं कर रहा है. इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं सो दैट दे लुक कि ये एएमसी सही से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही. ओके, सो अब हम एक एग्जांपल लेंगे. यूजुअली ये एक बैंक होता है जो एक स्पॉन्सर बनता है. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टर्म्स में एक बैंक या एक एनबीएफसी होता है जो ये ट्रस्ट स्पॉन्सर बनता है एंड वो एक ट्रस्टी और एएमसी को फॉर्म कर. तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. आप सभी ने सुना होगा आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड. ये तो सभी ने सुना होगा. आईसीआईसी तो सबने सुना होगा. इफ यू हैव नॉट मे बी हर्ड अबाउट प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड देन आईसीआईसी तो सबने सुना. तो वैसे ही जैसा कि आईसीआईसी तो बहुत साल पहले आईसीआईसी थॉट कि हम लोग बैंक में तो काम कर ही रहे हैं, बैंकिंग तो हमारी अच्छी चल रही है, डिपॉजिट लोन्स वगैरह सब अच्छा चल रहा है, बट नाउ इंडिया रिक्वायर्स अ म्यूचुअल फंड एएमसी एज वेल बिकॉज मेरे बैंक के जो कस्टमर्स है उनको हम एफडी में तो कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू गिव देम सम मोर रिटर्न्स एंड हेल्प देम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट एज वेल. सो इसीलिए आईसीआईसी ने तो सोचा कि हम लोग भी एएमसी कंपनी एक म्यूचुअल फंड कंपनी स्टैब्लिश करें. इफ आई वांट to establish a mutual fund company ना, तो I'll not be able to. Why? Because I need a sponsor. I need a bank जिसको एक्सपीरियंस हो. इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मार्केट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तभी हम एक एएमसी कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी खोल सकते. तो आईसीआईसी बैंक थॉट ऑफ मेकिंग अ AMC company which was named as ICICI Prudential Fund और उसको जो हेल्प करे गाइडलाइंस में, उसको सारे रेगुलेशंस हेल्प करने में या वो सही काम कर रहा है या नहीं उसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने बना ICICI Prudential Limited. इसीलिए म्यूचुअल फंड्स आर टर्न्ड एज सेफ क्योंकि उस एक म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो सो वो डूबेगा नहीं. उसकी समवेयर एक हमारे माइंड में श्योरिटी रहती. क्यों? क्योंकि वो मैनेज्ड होता है एक बहुत बड़े बैंक आईसीआईसी बैंक. क्या किसी को भी पता है कि सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड या सबसे बड़ा एएमसी कंपनी कौन सा है, किस बैंक की? I'll give you a hint also, वो एक बैंक ही है. Does anyone know यहाँ पर? If you don't,
सो वो है HDFC। HDFC बैंक का असेट अंडर मैनेजमेंट, व्हाट इज दैट, AUM जो है वो बहुत बड़ा है। सो असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है कि वो एक AMC कंपनी अपने अंडर कितना बड़ा फंड मैनेज कर रही है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड असेट अंडर मैनेजमेंट। सो HDFC के अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 400 to 500 फंड्स चलते हैं जिसमें वो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो जो ये HDFC बैंक होता है, उसका जो भी म्यूचुअल फंड है, यू मस्ट बी श्योर कि अच्छा इसको कुछ भी होगा तो देयर इज अ बैंक पीछे बैठी हुई है उसको बैक करने के लिए। सो कुछ भी प्रॉब्लम होगी, सो इट्स अ बैंक बैक्ड म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट अब हम आएंगे कि ये सारे जो भी AMC है ये वर्क कैसे। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे जैसे कुछ लोग हैं हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग सम अमाउंट। जैसे कि सपोजिंगली एक इंसान है, एक person है जो who wants to invest like 1000 rupee, and she thinks, this girl thinks कि 1000 है and I believe that maybe IT sector will boom the most. The best IT sector stock कौन सा है, तो वो है TCS। TCS का शेयर कितने प्राइस पे चल रहा है, तो वो चल रहा है अभी अप्रोक्सीमेटली 4000 या 4500। बट दिस गर्ल ओनली हैज 1000 rupee to invest. Will she able to buy that share? No, she will not. But she can afford 1,000 only from her pocket money, either from her pocket money or from her salary. So क्या मतलब है कि वो करेगी इन्वेस्ट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो इस वजह से ये एक है। नाउ दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स कि हमें मे बी आई विल इन्वेस्ट इन सम बॉन्ड्स, दिस पर्सन थिंक्स कि आई इन्वेस्ट इन द होल इंडेक्स। तो ऐसे ऐसे करते करते ये सारे लोग कुछ कुछ पैसे डालने चाहते, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ये कुछ पैसे डालेंगे, इनके पास पैसे पूरे हैं, इनको डालना है, बट दे डोंट नो द राइट पाथ, और दे डू नॉट नो द कि कौन सा कहाँ पे डालूं मैं, एंड दे डू नॉट इवन हैव द इनफ मनी। सो व्हाट दे डू इज दे गिव दिस मनी टू अ फंड मैनेजर। ये एक फंड मैनेजर के पास पैसे जाते हैं। फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर वो होता है कि जो ये पैसे लेकर, ये सबके पास मान लो कुछ पैसे हैं, ये सबको एक मिला के एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना, सपोजिंगली मे बी 10,000 crore। ओके, this person has invested some, this person has invested some, this person has invested some। तो अभी ये क्या था, एक फंड मैनेजर के पास who has a vast track record of managing funds, who is a financial expert, who is a financial analyst, who might be a CFA, a very knowledgeable person when it comes to स्टॉक मार्केट। ओके, सो ये सारे पैसे इसमें जाते हैं। अब ना ये अभी पैसे लेकर क्या करता है, ये जो भी अलग अलग एवेन्यूज है, जैसे ये हो गया निफ्टी 50, यू कैन टर्म इट एज इक्विटी, मतलब स्टॉक्स में पैसे डाले। कुछ लोगों को लगता है कि वो कमोडिटी में डालना चाहिए पैसे, कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे, बट आई कैन नॉट अफोर्ड गोल्ड, आई ओनली हैव 1000 रुपीज, बट आई थिंक कि नहीं गोल्ड जाएगा, या मे बी सेफ इन्वेस्टमेंट, सो वो उसमें डालेगा। फिर कुछ बॉन्ड्स होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट आर द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन फॉर वेरी शॉर्ट, जहां मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। आज इतना ऊपर है, कल को मान लो वॉर हो जाएगी तो मार्केट गिर जाएगा, बट हमें सेफ्टी भी चाहिए, तो कुछ ऐसे भी नहीं। तभी जिसका भी जो भी एम होता है वो उस एम के अकॉर्डिंगली पैसे वहां वहां इन्वेस्ट कर देता है। कौन करता है? फंड मैनेजर। तो ये सारे पैसे वहां पर इन्वेस्ट हो जाते हैं। नाउ अब इसके जो भी रिटर्न्स, सपोजिंगली ये 10,000 करोड़ को इसने यहाँ डाला, 10,000 करोड़ ने इसमें यहाँ पर इसने 10% कमाया। सो नाउ दिस 10% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज पीपल अकॉर्डिंग। ओके, ये जो है अभी सपोजिंगली किसी ने 1,000 रुपए डाले और इस फंड में 10% कमाया, ओके, सो दे विल गेट 10% ऑफ दिस। ओके, बट इसमें एक क्या कहते हैं, आप ये सोच रहे होगे कि why will someone do it for free, है ना? And that's the right question as well, because AMC बहुत बड़ी कंपनी होती है, इसको चलाने के बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, फंड मैनेजर की फीस होती है। सो व्हाट दे डू इज दे कट सर्टेन पोर्शन ऑफ इट। ओके, जैसे कि सपोजिंगली इसने कमाए हैं 20% ऑन द फंड, सो दे विल डिडक्ट इट एज मे बी 2%, 3%। उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, कि फंड मैनेजमेंट या फिर AMC कंपनी आपका कितना एक्सपेंस रेशियो, कितने चार्जेस काट रही। ओके, दे विल नॉट से कि आई हैव अर्न 20 and I'm giving you 18, they will just say that my fund is making 18% return on an average, above it they have already deducted their money। अब जैसे कि 18% आपको, तो ये 18% अकॉर्डिंगली आप लोग को मिल जाता है और आपके इस पे रिफ्लेक्ट होता है। अब हम सीखेंगे, हमने समझ लिया कि ये म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। अब कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, हम
इतने सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, फ्लेक्सी कैप होता है, ट्यूलिप होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अभी कौन से म्यूचुअल फंड में हमें पैसे डालने चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अभी 4 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट होता है, बैलेंस्ड होता है, मनी मार्केट। सो इक्विटी स्कीम्स वो स्कीम्स होते हैं जो कि इक्विटी में डाल। व्हाट डज इक्विटी मीन? स्टॉक्स, मतलब HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सारी जो भी शेयर्स में हम डालते हैं ना पैसा, वो जो फंड शेयर्स में अगर पैसा डालती है, फुल फंड को वहां डाल देती है, उसको कहते हैं इक्विटी स्कीम। ओके, नाउ इन्वेस्टेड इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, जो भी मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट यानी NSE या BSE पे लिस्टेड है वो शेयर, उनमें ये इक्विटी स्कीम्स पैसे डाल दिए। Now comes your debt. Debt schemes basically bonds and debentures में पैसा डाल। Bonds and debentures usually give you a percentage return which is a little higher than your if. Okay, so इसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब आप थोड़ा सेफ खेल। Then दूसरा कौन सा फंड होता है? दूसरा फंड होता है बैलेंस्ड फंड्स, जिसमें होता है इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स एज वेल एज इन बॉन्ड एंड डिबेंचर। मतलब ये दोनों का मिक्सचर हो, जिस थोड़ा सा इसमें बॉन्ड्स में भी डालते हैं, थोड़ा सा इसमें इक्विटी में भी डालते हैं। ये जो भी फंड होते हैं स्पेसिफिकली इन बैलेंस्ड स्कीम, सो द पोर्शन इज डिसाइडेड कि 60% विल बी डिवोटेड टू इक्विटी या 20% विल बी डिवोटेड टू इक्विटी। वो पहले से प्री स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड होता है, एंड ये सारी चीजें आपको पहले से बताई जाती हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड में डालना है। ओके, देन कम्स योर मनी मार्केट स्कीम्स। वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सारे के इसमें डालते हैं। अभी सबका रिटर्न्स हम लोग देख लेते हैं। इक्विटी स्कीम का जो रिटर्न्स होता है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ देम इज अ लिटिल हायर ऑन द पार्ट कि 12 to 20% लिखने के लिए होता है, बट इट यूजुअली यू कैन टेक अप टू 15 to 20% आराम से मिल जाता है किसी भी इक्विटी स्कीम। ठीक है, डेट में कितना मिलता है? 7 to 9%। बैलेंस्ड स्कीम में कितना मिलता है? 10 to 15। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इक्विटी का कॉम्पोनेंट है, थोड़ा सा डेट का कॉम्पोनेंट। डेट म्यूचुअल फंड है बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली सेफ, सो दैट इज व्हाई रिटर्न्स आर लिटिल लेस। इन द लेटर स्टेज आई विल टेल यू कि रिस्क को हम लोग कैसे देखकर ये म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे कि किसको किस में डालना चाहिए। एंड देन मनी मार्केट में सबसे कम है 4 to 6%। नाउ यू विल बी आस्किंग कि मैम अगर ये 4 to 6% ही है, my FD will give me a 7% return, then why should I be investing in money market schemes? So dear, the point is the money market में जो ये returns है ना, money market का जो tenure है तो ना less than a year, okay? And आपकी FDs वगैरह will not be giving you रिटर्न्स, और FD मतलब जो भी कम टेन्योर की होती है उसमें कम ही FD के रिटर्न्स भी होते हैं। ओके, सो द पॉइंट इज कि ये जो मनी मार्केट अगर आपको शॉर्ट में डालना है कि आपको 2 महीने के लिए डालना है, 3 महीने के लिए डालना है, 2-3 महीने में मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, यू कैन नॉट प्ले ऑन रिस्क। वो कुछ भी हो सकता है आपके पैसे को, वो नेगेटिव भी जा सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डाल दोगे, मान लो जैसे अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, अभी वॉर होगा तो मार्केट विल गो डाउन, एंड आपका अपने जो लाख रुपए डाले मे बी वो लाख का 90,000 भी हो सकता है, 90,000 इट कुड बी 90,000। ओके, बट इन मनी मार्केट एटलीस्ट योर principal amount, that's your 1 lakh rupees, was actually safe and secure. Okay, and on top of it you'll get certain returns, maybe 4 to 6% return. Okay, so that is why money market instruments are also there and one can invest. Okay, अब इसका टेन्योर हम कब कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और कब कर सकते, जैसे कि इक्विटी स्कीम, इफ आई हैव एन होराइजन दैट अच्छा अभी आई हैव started my earnings, at least for the next 3 years I do not require money. Okay, if you have a long term vision, okay, you can invest in equity schemes, क्योंकि जो भी मार्केट में volatility होगी वो मे बी 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, बट इन 3 to 5 years, 10 years वो मार्केट उसको रीबाउंस कर लेता है, एंड वो सफाइज, मतलब कि जो भी आपके लॉसेस हुए समवेयर वो एवरेज आउट हो जाते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है उसके बाद एक डबल होके वो रिटर्न आता है। मतलब आई एम टेलिंग ऑल ऑफ इट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन मार्केट ओनली। ओके, सो ये अगर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन में डालना है, ओके, तो आप डाल सकते हो इक्विटी स्कीम्स में। ऑल्सो वन रीजन इज दैट टिल देन 3 साल में मान लो कुछ भी दिक्कतें आई होंगी, सो आपके जो रिस्क होते हैं वो मिटिगेट समवेयर हो जाते हैं, क्योंकि एवरेज आउट इस साल मान लो मार्केट ने 100% का रिटर्न दिया, अगले साल मान लो 10% का ही दिया, और उसके भी अगले साल में भी 40 दिया, उसके अगले साल में भी नेगेटिव रिटर्न दिया।
सो क्या होता है कि ये सारी चीजों का एवरेज हो जाता है। जब आप ज्यादा समय के लिए डालते हो पैसे, तो एवरेज आउट होने लगता है। अगर किसी साल ज्यादा किसी साल कम है, तो वो एवरेज हो जाता है, एंड दैट कम्स टू अ स्टेबल रिटर्न ऑफ मे बी 15 to 8। सो जब भी आप सोचते हो कि आपको लंबे समय के लिए पैसा डालना है, उसमें हम डालेंगे इक्विटी में, यानी स्टॉक मार्केट। अगर आपको 1 साल से ज्यादा के लिए डालना है, मान लो आपको 2 साल के लिए पैसे डालने हैं, 3 साल के लिए पैसे डालने, तो 2 साल की एफडी भी डिफिकल्ट, 1 साल की होती है थोड़ा, उसमें कितने मिलेंगे, 6.5% रिटर्न मिलेगा। बट अगर आप बॉन्ड में डालते हो तो 9 से 10% 2 साल में ही आपको मिल जाएगा, विच इज अ डिसेंट रिटर्न ऑन अ सेफर साइड एज वेल, बिकॉज in 1-2 years anything can happen, any volatility can happen, nothing is stable in 2 years time. It's a very short a period of, okay. But now if you think कि हम we are not so much certain, हम 2 साल के लिए भी डाल सकते हैं, 3 साल के लिए भी डाल सकते हैं, and I want to play a little safe as well, और थोड़ा तो रिस्क लेना है, अभी I have time, so then only you should go with a balanced scheme, okay. And एज आई सेड अर्लियर, अगर आपको पैसे कम समय के लिए डालने हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, तो हम डालते हैं मनी मार्केट स्कीम्स, ओके। ऑल्सो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि who should invest in all of it, okay. So like I'll tell you, I am 22 right now, okay, and I have my whole life to earn money, okay. So if I have a longer horizon, okay, I have at least next 40 years that I'll be earning, okay. So अभी मेरे पास 40 साल है पैसे कमाने के लिए, so I can take a little risk, okay. Risk on equity part is the highest, okay. So that is why अगर आपका एज भी कम होता है and you have longer period of time to earn money, then you should take a little risk and invest in equities, okay. Debt schemes में वो लोग को डालना चाहिए who are maybe, what do you say, retired, okay, they have earned all their life। अगर वो पैसे उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके पास नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास वही कॉर्पस है जो उन्होंने इतने सालों में अर्न किया, दैट्स ऑल विच दे हैव, ओके। सो नाउ किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, डेट फंड्स में, हु आर most retired, okay, now they have retired and they want की एक stable income, अच्छे से इनकम आ जाए मेरे को हर समय, so for them debt schemes are the best। balanced schemes are usually for people who are mostly in their 30-40s, okay, now they have a little lesser, maybe 20 years, 10 years down the line to earn, and they have earned for a major part of their lives, so उनके पास एक जो भी कॉर्पस है, they are आगे के 10 साल कम है, जो उन्होंने 20 साल ऑलरेडी यूज कर लिए है अर्न करने के लिए, सो दे शुड नॉट बी टेकिंग so much of risk, okay। But in 5 years market averages out and gives good return, or Indian markets are very, to be very honest, very strong, the economy part as well, so little bit risk is certain, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। एंड दिस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट, यू कैन नॉट क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ एजेस, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर, ओके। सो बट देयर इज वन suggestion is always do start an SIP at as soon as possible, as जितना आप ज्यादा, अभी आपको अर्निंग पोटेंशियल में मैं दिखाऊंगी, जितना ज्यादा आप साल छोड़ोगे अपने पैसों को, उतना ज्यादा आप अर्न करोगे, उतना ज्यादा आप रिटर्न्स बनाओ। देखो इसका रिटर्न का ग्राफ देखो, यहाँ पर इट इज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट ऑन अ लॉन्ग रन इट इज मेकिंग अपर हाइज एंड अपर लोज, सो ये क्या ऊपर ही जाना है, स्लैंट, इसमें उतना मूवमेंट नहीं रहता। ओवर द इयर्स अगर आप रखोगे थोड़ा स्टेबल रहेगा ये वाला, बट returns will be little less, that's why it's more steep, it's not, whereas ye balanced dekho, why balanced is like this, very much equivalent it is, because इसमें एक risk का भी part है and safety का भी part, and this is almost similar, because 2-4 महीने में this will give you a risk, इसको कहते हैं risk free return as well, इसमें कोई risk नहीं रहता है आपका, and it has a stable income, okay। Now next that we can go ahead with the types of equity schemes। अभी हम लोग mostly are young children, young population who should know and who should invest as soon as you can, मतलब maybe today itself, जितना आप जल्दी करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग इसी वजह से डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्विटी स्कीम्स में बेसिकली क्या तो होते हैं। 4 तरीके के होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड मल्टी कैप। स्मॉल कैप फंड क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैप ही क्या होता है। कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैपिटलाइजेशन। सो व्हाट इज कैपिटलाइजेशन? सो देखो जैसे कि आप लोग को ये दिख रहा है, ये मैंने
में 4 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। ओके, स्मॉल कैप मतलब क्या होता है कि सपोजिटली एक शेयर है जिसका प्राइस अभी 100, ओके, एंड उसके मार्केट में शेयर है 1000, सो 100 into 1000, how much it is? 1 lakh. तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? 1 lakh. ओके, वेयर मिड कैप कंपनी है जिसका प्राइस है मे बी 1500, ओके, एंड उसके शेयर्स होंगे मे बी 2000. सो आप उसको मल्टीप्लाई, जब शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट, उसको कहते हैं हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, सो ये ना स्मॉल कैप सिग्निफाइज कंपनी कि वो स्मॉल कैपिटल कंपनी, स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, मतलब स्मॉल कंपनी है, या मिड कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, या लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली। सो ये 3 तरीके के होते। यूजुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2000 करोड़ आई थिंक इज द लार्ज कैप का, 2000 करोड़ से बड़ी होते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस, बट हाँ, एज फार एज आई रिमेम्बर 2000 करोड़ से above जिसकी भी कैपिटलाइजेशन, those are termed as large cap companies and so on. Okay, so अगर हम स्मॉल कैप फंड, अभी स्मॉल कैप फंड क्या होगा? वेरी कि जो फंड स्मॉल कैप कंपनीज में डाले, ओके, यानी कि मोस्टली 500 करोड़ से कम की होती है, जो उसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम का हो। सो फंड मैनेजर क्या करेंगे? वो स्मॉल कैप कंपनीज में डाले। जब हम किसी कंपनी को बोलते हैं कि वो स्मॉल कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, यानी वो अभी ग्रो कर रही है, ठीक है, अभी वो मे बी स्टैब्लिश हुई है, नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस, दे आर नॉट सो वेरी बिग कम, ओके, बट दे हैव द अर्निंग पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल, जिससे वो बड़ी बन सकती है। दिस स्मॉल कैप वन डे विल बिकम लार्ज कैप कंपनी। ओके, फर्स्ट, हाँ, ये हुआ। मिड कैप कंपनी मतलब कि वो थोड़ी पुरानी हो गई, दे हैव सेट ऑन देयर बिजनेस, नाउ दे आर वर्किंग, दे आर ऑन देयर ग्रोथ स्टेज एज वेल, बट देयर ग्रोथ्स हैव बिकम अ लिटिल मोर स्टैग्नेंट देन the small cap companies because they have stabilized. Okay, over the years you cannot grow as exponential as you can grow in the when you're at a small phase. Okay, so mid cap companies क्या होती हैं? जो companies थोड़ी बड़ी, okay, अभी मैं सबका एग्जांपल दूंगी। एंड लार्ज कैप क्या होती है? जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, दे आर वेल स्टैब्लिश्ड, गुडविल, सब चीज अच्छा। स्मॉल कैप, आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव हर्ड और नॉट, देयर इज अ broking firm, Angel One. Okay, I'm an authorized person of Angel One as well. So Angel One is a small cap company. Doesn't mean कि Angel company wise छोटी है, ओके, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है। एंजल वन इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट नंबर 1 इन ऑथराइज्ड पर्सन। ओके, सो एंजल वन जो एक छोटी स्मॉल कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि वो उसका ग्रोथ हाईएस्ट रहता है, ठीक है, उसके पास ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप भी रहता है। ओके, मिड कैप कंपनी, जैसे बिग बाजार है, स्मार्ट बाजार है, वैसे एक लिस्टेड कंपनी दैट इज डी मार्ट, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट, उसकी पेरेंट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्केट, दैट्स अ लिस्टेड कंपनी, एंड वो है एक मिड कैप, मिड साइज कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं। लार्ज कैप में रिलायंस व्हिच इज वेरी बिग, वेरी वेरी, ओके, सो इसमें अभी ये सारी कंपनी हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये होती है, एक छोटी कंपनी होती है, उससे बड़ी कंपनी होता है, उससे बड़ी। अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें किस में डालना है। सो हम कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहला होता है, 2 चीजें होती है, एक होता है रिस्क एपेटाइट एंड टाइम टेन्योर। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो ये तुरंत ग्रो नहीं करेगी, इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, ओके, मे बी 5 years 10 years डाउन द लाइन। सो अगर हम टाइम होराइजन के हिसाब से देखें, अगर आपका होराइजन है कि आपको लंबे समय के लिए पैसा डालना, ठीक है, तो आप डाल सकते हो स्मॉल कैप फंड। ओके, अगर आपका होराइजन है कि हमें 5 साल 6 साल में डालना, ओके, तो हम डाल सकते हैं मिड कैप। एंड लार्ज कैप में अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो, सिर्फ आपको 3 से 4 5 साल के लिए डालना है, आपको अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए, तो आप लार्ज कैप में डाल। अभी रिटर्न्स का हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद जो आपकी रिस्क एपेटाइट। ओके, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है क्योंकि वो छोटी हैं, ओके, सो अगर स्मॉल कैप, मान लो इफ एक्स कंपनी इज XYZ सपोजिंगली, सो एक्स कंपनी अगर आज ये 10,000 की सेल करती है, सो मे बी अपना सेल डबल कर सकती है। 20,000 का सेल करना इज नॉट सो बिग, ओके, 10,000 का सेल हो रहा है, तो अगर ये 100% भी कर दे, यानी 10,000 और भी नेक्स्ट ईयर कर दे, इट्स अ 100% गेन, द कंपनी हैज डबल्ड इट्स सेल्स, नॉट वेरी बिग। ओके, 10,000 से 20,000 कमाना तो बहुत बड़ी चीज नहीं है।
ओके, क्योंकि मार्केट साइज बड़ा है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज प्लेंटी है, तो छोटा नंबर है ना, छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना इज नॉट अ बिग। 10,000 का 20,000 होना इज नॉट वेरी बिग। वेर एज अगर ये मिड कैप कंपनी है विच इज ऑलरेडी अर्निंग 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख डबल होना अगेन इज अ लिटिल मोर चैलेंजिंग एंड मोर टास्कफुल। मे बी अगर ये एक साल में 10,000 का 20,000 बना दी, ये 1 लाख का 2 लाख अलग 1 लाख कमाना इज अ बिग टास्क। ओके, सो मे बी ये 50,000 ही कमा पाए। सो 1,50,000 इट हैज मेड। ओके, जो एक साल तो 50,000 रुपए कमाया इसने। वह तो इसका लेकिन रिटर्न कितना मिला, कितना मिला रिटर्न? दैट इज ओनली 50% रिटर्न। वाई? बिकॉज ये मिड साइज कंपनी, इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मार्केट कैप है वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया है, वहां से डबल होना इज अ टास्क। ओके, तो 50% रिटर्न है, बट आप देखो इसने कमाया एट द एंड ऑफ द डे कितना? 50,000। इसने तो 10,000 कमाए ना। सो इसीलिए इसके लिए डबल रिटर्न, मतलब 10,000 का 20,000 होना आसान है, वेराज 1 लाख का 2 लाख होना इज नॉट आसान। उसने 85,000, बट 50,000 भी इससे बहुत बड़े, इसके 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ओके, ये 1 लाख। नाउ अब लार्ज कैप, तो लार्ज कैप कंपनीज अगर 1 करोड़ रुपए एक दिन का, एक साल का कमा रही है, तो उसका 2 करोड़ कमाना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। क्या वो 100% के पेस से रन कर पाएगी? आई रियली डोंट। वो मे बी सिर्फ 10% कमा पाएगी, मे बी 10 लाख रुपए। ओके, सो वो 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख ही हो, 10% कमाए, बट उसने कमाया कितना? उसको 10% भी कमाने के लिए कितना कमाना पड़ा? 10 लाख रुपए। इसने कितना? 100% कमाने के लिए सिर्फ 10,000 कमाए, इसने 10% कमाने के लिए भी 10 लाख। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ पोटेंशियल? that is why this has much more growth potential than a large company. अगर ये 100% कमा रही है, तो आपको कम से कम 50% तो दे सकती है। This can give you a 50% return. He himself is making 100% return. Okay, so that is why returns in a small cap company is much more higher as compared to a large cap company. So if you're investing in a small cap fund, the expectation is approximately of 20% to 25. It can also give you 25% return. I personally am investing in small cap funds, and they are giving me beautiful 25 to 30% return also on a year base. Okay, whereas mid cap may not give you, खुद ही 50% कमा रही है, तो आपको मे बी 20% देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। whereas large cap companies, large cap funds, जो कंपनीज हैं, वो 10% कमा रही है, तो हाउ मच यू थिंक यू विल बी गेट? मे बी अगर 20% भी कमाएगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 12% का रिटर्न। ओके, सो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजों को कैसे इसमें डालना चाहिए? स्मॉल कैप में क्या, इफ यू हैव अ हायर रिस्क एपेटाइट, इफ यू थिंक यू कैन इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड्स आर फॉर यू। स्मॉल कैप फंड्स में तभी आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, उसमें ज्यादा पैसे भी जल्दी बड़े होते हैं। बट अगेन रिस्क इन्वॉल्वमेंट इज देयर बिकॉज दीज आर स्मॉल कंपनीज स्टिल एट द ग्रोथ स्टेज, that some anything can happen to. Okay, mid cap companies are in between, stable. वो बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं देंगे, बहुत कम रिटर्न नहीं देंगे, बट दे विल गिव यू अ गुड रिटर्न, मे बी और 15% 18% रिटर्न। Whereas when it comes to large cap, you can only expect a 12 to 15% का return because these companies are already very okay. So even funds will not be able to make so much out. But अगर आप खुद ही नए हो, maybe if you want to play very very safe, you also want to earn, but you are not able to understand, then सबसे simple option होता है multi cap, a fund which invests in all these three. So उसमें थोड़ा सा component small cap का भी होगा, थोड़ा component mid cap का भी होगा, थोड़ा component large cap का भी होगा. It can have any of. Okay, अब इसमें देखो यहाँ पर ये कौन सी कंपनीज में करती है, तो जो टॉप 100 कंपनीज है इस इंडिया में। ओके, मिड कैप फंड में जो 101 to 250 कंपनीज है, एंड देन दिस कंपनी, दिस स्मॉल फंड जो है स्मॉल कैप फंड में है, तो बियॉन्ड 250 के बाद जिस भी कंपनी का नंबर आता है उसमें ये लोग इन्वेस्ट कर। ये देख लो मार्केट कैप यहाँ पे लिखा, मार्केट कैप लेस देन 500 करोड़, इसका मार्केट कैप है 5,000 करोड़, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,000 to 20,000 करोड़, एंड इसका 20,000 एंड अबव करोड़। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सोचो इसको 20,000 करोड़ जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसको 10% भी अर्न करने के लिए 2,000 करोड़ अर्न करना, 2,000 करोड़ अर्न करना इज अ वेरी बिग थिंग, इज अ वेरी वेरी बिग। इसको 2,000 अर्न करना 10% के लिए, अगर ये 100% भी कर लेना तो इसका 5,000 करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली ओनली डबल ऑफ, अगर ये हाफ करे तो इसके 10% के बराबर। ओके,
एंड ये स्मॉल कैप कंपनीज कितनी होती हैं? सो स्मॉल मिड सॉरी मल्टी कैप फंड का होता है जो स्मॉल मिड और लार्ज तीनों में इन्वेस्ट। सो अगर आप लोग को लगता है कि आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो उतना नहीं ले सकता है, ओके, हम हमें थोड़ा सेफ खेलना, इधर यू कैन गो टू एनी मल्टी कैप फंड। अभी इसमें यहाँ पे रिटर्न्स जैसा कि मैंने आपको बताया 15 से 25% का रिटर्न, इसमें कैप में 12 to 18%, whereas large cap में 10 to 12% का ही आप रिटर्न, एंड मल्टी कैप इन जनरल विल गिव यू 12 to 18% का। ओके, नाउ जो नेक्स्ट हम लोग अभी करेंगे कि अदर इक्विटी स्कीम्स भी कुछ कुछ थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। वी हैव वेरी लेस time also, so देखो I'll be little more quick now. थीमेटिक फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, ELSS क्या होता है, ETF क्या होता है। आजकल रील का जमाना है, एवरीवन वुड बी नोइंग एवरीथिंग। बहुत लोगों ने सुना होगा ELSS, ETF, इंडेक्स फंड, तो यू मे नॉट हैव हर्ड मोर ऑफ थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड क्या होता है ना, वो थीमेटिक मतलब होता है थीम बेस्ड। ओके, सो किसी थीम पे बेस होता है, जैसे कुछ जैसे कि एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ओके, डिजिटल फंड, आईटी फंड। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम बोलते हैं तो इसका मतलब वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर, ठीक है। इंडेक्स फंड क्या होता है ना, दो इंडेक्स हैं, ओके, मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस दो हैं, NSE एंड BSE। NSE का जो इंडेक्स है तो उसका निफ्टी 50 नाम है, वो इंडिया सॉरी NSE पे 50 कंपनीज जो लिस्टेड है उसका एक इंडेक्स बना हुआ है। तो वो जो फंड है ना वो उन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते, so उसको कहते हैं इंडेक्स। सो अगर पूरी इंडियन मार्केट अच्छा चल रही है तो वो फंड भी उतना ही रिटर्न देगा। दिस इज अ लिटिल सेफर इन थीमेटिक इफ यू थिंक कि अच्छा मैन्युफैक्चर, अभी गवर्नमेंट ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर विल डेफिनेटली वर्क। सो आप इसमें पर्टिकुलरली वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में डालें। इफ यू आर वेरी बुलिश अबाउट, इफ यू आर वेरी वेरी बुलिश about the what do I say about the IT sector, देयर IT सेक्टर के फंड्स की जो सिर्फ IT कंपनीज में ही पैसा डाल, तो आप सिर्फ उसमें डाल सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ना, इन्वेस्ट इन कंपनीज ऑफ वन सेलेक्टेड सेक्टर, एक सेक्टर की किसी कंपनी। इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करते हैं जो भी इंडेक्सेस होते हैं उसके ही स्टॉक्स में। ELSS is maybe if anyone who is here would be working, so in the ELSS क्या होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें वो 3 साल का लॉक इन होता है, एंड यू इन्वेस्ट इन अ फंड, ओके, जिसमें आपको टैक्स में ATC में डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, वो टैक्स सेविंग के लिए। अभी हमें टैक्स में जो भी हम लोग का यूजुअल ट्रेडिशनल मेथड्स है, दे हैव लेसर रिटर्न, बट हमें मार्केट से भी पैसा कमाना है, हमें टैक्स से भी बचाना है, तो ELSS ज्यादा ऑप्शंस फ्री, ओके। हम अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही पैसे बचाना, बट इसमें क्या होता है 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। देन ETF क्या होता है, ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स लिस्टेड ऑन एक्सचेंज। ओके, सो क्या होता है ना, अभी जैसे म्यूचुअल फंड के व्हाट डू आई से यूनिट्स हो दिस, बट दीज यूनिट्स अगर आपको मिले ना, यू कैन नॉट सेल इट टू समवन। इफ आई हैव 10 यूनिट्स ऑफ कोटक स्मॉल कैप फंड, आई कैन नॉट सेल इट टू एनीवन, ओके। सो वैसे ही बहुत सारे ETFs, बहुत सारे यूनिट्स जो होते हैं ना वो मार्केट में लिस्टेड होते, ओके, जैसे गोल्ड के ETFs होते हैं। सो अगर आई कैन नॉट बाय गोल्ड बट आई कैन बाय गोल्ड ETF, तो हम लोग कुछ यूनिट्स होते हैं जो हम लोग खरीद सकते हैं मार्केट से। निफ्टी पूरा इंडेक्स, निफ्टी राइट नाउ इज trading at 25,000. I believe कि it will go up to 30,000. I cannot buy the whole index. I cannot buy 50 stocks उसमें जो listed है, कोई stock उसमें 5,000 का है, कोई 2,000 का है, कोई 1,000 का है। I cannot buy all of, but उसके index, उसके निफ्टी के ETF listed है, which is only trading at 25 rupees. जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में भी बोला, उसमें भी कम से कम 1,000 रुपए डालते हैं आप, ठीक है, तो वो हम नहीं खरीद सकते। बट ETF एक ऐसा ऑप्शन है मार्केट में जिसे आप 25 रुपए, 30 रुपए इतने से भी आप खरीद सकते हैं। देयर इज नो टाइम, सॉरी, देयर इज नो मनी बाउंड्री इन ETF और इन एनी मार्केट टर्मिनोलॉजी, ओके। अभी कैसे पैसा, अभी तो हम समझ के कि ये फंड है, ये फंड है, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि विच फंड आई शुड बी इन्वेस्टिंग, but in which way? So there are basically two ways that you can invest. One is lump sum and one other is your SI. So लम सम में क्या होता है ना कि आपको एक बार में आपको, जैसे सपोजिंगली आप वर्क करते हो एंड यू हैव गॉट अ बोनस, और मे बी आप इन 1 मंथ की इंटर्नशिप की है सपोजिंगली, एंड यू हैव अर्नड अ स्टाइपेंड ऑफ मे बी 20,000 रुपीज। अभी आपके पास एक बड़ा अमाउंट आ गया है, ओके। सो अभी आपको डालना है तो म्यूचुअल फंड में, तो आप एक बार में पैसे डाल के छोड़ो, ओके, हर समय डालने की जरूरत। SIP क्या होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब
हम हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं। आई एम अर्निंग, आई फील आई कैन स्पेंड एटलीस्ट 2000 हर महीने तो मैं बचा सकती है, तो मैं हर महीने 2000 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो क्या है, मैं एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लूंगी, लाइक आई एम इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड कॉल्ड एज कोटक स्मॉल कैप। ओके, सो कोटक स्मॉल कैप फंड में क्या होता है ना कि वो जो इन्वेस्टमेंट होता है आपका, वो मेरा हर महीने, मेरे जब मैंने डेट डाला हुआ मेरी 15th, तो वो हर महीने की 15 तारीख को वो खुद ब खुद 2000 रुपए कट के मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता। ओके, अब इसमें कम से कम हम कितना कर सकते हैं, तो SIP सॉरी लमसम जो है उसमें हम लोग कम से कम 5000 रुपए कर सकते हैं। वेर एज इन व्हाट डू आई कॉल SIP, यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विथ 100 रुपीज ऑल्सो। आप 100 रुपए से भी, बट नॉट ऑल फंड्स गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। कुछ ही फंड्स होते हैं जैसे एडलवाइज स्मॉल कैप एंड ऑल दैट, दे अलाउ यू टू इन्वेस्ट फ्रॉम 100 रुपीज। बट द क्वेश्चन इज मैम हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि कौन से फंड में कितना अलाउ होता है। तो आपके जो भी एप्स होते हैं ना, ब्रोकिंग एप्स होते हैं, यू नीड टू हैव अ डीमैट फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो उसमें ना लिखे हुए रहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ, वहां से आप देख सकते हो ओके अर्निंग पोटेंशियल क्या है म्यूचुअल फंड का। सो अगर हम लमसम में पैसा डालते हैं, मान लो हमने 1 लाख रुपए एक बार में डाल फॉर 30 years ऑन एन एवरेज रिटर्न ऑफ सॉरी 15%। सो हमें 30 years के बाद 66 लाख रुपीज मिले। कैन यू इमेजिन दैट 66 लाख रुपीज जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपी विल गिव मी, मतलब आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग ही हो गई आपकी बस 1 लाख रुपए से। ओके, 30 साल बाद अगर आप रिटायर करने वाली, यू आर 30 एंड यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपए, अगर आप कम से कम भी 15% का एवरेज लोगे ना, तो आपको 66 लाख रुपए भाई आप SIP करते हो हर महीने फॉर द नेक्स्ट 30 years at 15% rate of interest, you get 56 lakh rupees. You need not to have dear what do I call a big amount to start your investment with. आप एक छोटे छोटे अमाउंट से भी कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आज आप मे बी 5000 रुपए कमा रहे हो अपने स्टाइपेंड से, तब जिंदगी भर 5000 पे ही रहोगे। Obviously you'll as you'll earn more, make more money. अगर मान लो 1 लाख के बदले हम 2 लाख कर दिए होते यहाँ पर, तो ये what would have been this amount? डबल, अप्रोक्सीमेटली वो डबल होता, और डबल से भी ज्यादा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, तो इट वुड हैव बीन मोर देन 1 crore 20 lakh। ओके, सिर्फ 2 लाख रुपए आज करके आप 30 साल बाद अपनी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लिया, तो आपको 2 साल सॉरी 30 years बाद व्हेन यू रिटायर यू विल गेट 1 crore का कॉर्पस जस्ट बाय इन्वेस्टिंग टुडे 2 लाख। ओके, वही यहाँ पर SIP, अब देखो, अब ये SIP अमाउंट आप बढ़ाओगे 4 साल बाद, 10 साल बाद, हर समय आप बढ़ाओगे, तो ये अमाउंट दिस विल ग्रो एक्सपोनेंशियल। ओके, अब आप, ये तो मैंने बता दिया, अब आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आपको क्या करना होगा, आप गूगल पे जाओ एंड टाइप SIP कैलकुलेटर, या फिर उसके एप्स भी हैं बहुत सारे, आप बस सर्च करो एप्स SIP कैलकुलेटर, एंड वहां पर ही आपको ऑप्शन आ जाएगा वन टाइम। लमसम को बहुत जगह वन टाइम भी लिखा रहता है, सो यू कैन पुट कि मैं एक बार में अभी 5 लाख रुपए डालना चाहता हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट ये मैं अगर मान लो 15 क्या 14% करो, 12% करो, इतना करके कितना अमाउंट मिलेगा, तो आपको आज ही SIP कैलकुलेटर विल टेल यू कि आप कितना उसमें अर्न करने वाले। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ये सब चीजों को करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख, इसीलिए म्यूचुअल फंड के साथ एक अलग टर्म आता है NAV। ये म्यूचुअल फंड में इतना NAV मिला, इतना 10 NAV 12 NAV, तो NAV होता क्या है मामा? सो NAV स्टैंड्स फॉर नेट असेट वैल्यू। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक फंड मैनेजर जो है वो सारे लोगों से फंड ले लिया है। वाई NAV इज इम्पोर्टेंट? सारे लोगों से फंड लेकर उसके सपोजिंगली मान लो 10,000 का कॉर्पस, ठीक है, फंड जितना का बना, उसका फॉर्मूला भी होता है। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला, नेट असेट वैल्यू NAV निकालने का फॉर्मूला। फंड असेट, जो भी आपका फंड्स है, मतलब जितना भी फंड मैनेजर ने पूल कलेक्ट किया है, पूरा कॉर्पस है, उससे उसकी जो भी एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज है, उसको माइनस करो, सबको नेट फंड मिल जाएगा जो वो इन्वेस्ट करने वाला मार्केट में। उससे वो क्या खरीदने वाला है? कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ही खरीदने वाला है, शेयर्स ही खरीदने वाला है। तो सपोजिंगली उसने 10 शेयर खरीदे, ICICI के 10 शेयर खरीदे, रिलायंस के 15 शेयर, TCS के 20 शेयर, HUL के फिर 30 शेयर, HDFC, तो ऑल टुगेदर उसने हम मान लो 100 शेयर खरीदे, उसने 10,000 डाले, ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा? तो हमें 100 मिलेगी। सो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 100। सो हम लोग का जो NAV, जो नेट एसेट वैल्यू आया हमारा, वो है 100। इसका कोई रुपीज नहीं होता या ऐसा टर्म नहीं होता। NAV 10 ऐसे ही बोलते हैं इसको, कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है जब भी हम NAV लगाते हैं। सो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आप जब भी करते हो, सो NAV is just an information. This has to be made very clear. आप NAV
ऐसा नहीं है कि अगर किसी का एनएवी 10 है और किसी का एनएवी 200 है तो इसका उससे रिटर्न्स में फर्क पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता। ओके, आप अगर 10 एनईवी का भी कोई म्यूचुअल फंड लेते हो और वर्सेस 200 एनईवी का भी कोई म्यूचुअल फंड करते हो, उसका रिटर्न्स डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एनईवी बट will depend how the stocks are performing and how much return you are able to, the fund manager is basically able to make. Okay, एक एग्जांपल लूंगी। अगर मैं बोलूं कि 50 रुपए में 4 packets of Maggi I'll get, okay, and where versus 50 rupees I'll get one app, that will not make Maggie better as compared to Apple will always remain better. So the performance, the overall quality of the fund will dignify or will signify the amount of return that you'll be generating and not the NAV. Numbers will not matter dear. Okay, वो NAV पे NAV is just an information कि अभी 20 पे चल रहा है, 10 पे चल रहा है, 200 पे चल रहा है, 40 पे चल रहा है। अगर आपने 50,000 का डाले हैं और आपका फंड ने 10% कमाया तो आपको 50,000 पे 10% का मुनाफा होगा, विच इज डज नॉट मैटर कि उस 50,000 में आपके पास 100 एनएवी है 10 रुपए के या फिर 50,000 में 2 एनएवी है जितने भी रुपए। सो एनएवी पे एक बहुत बड़ा मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का क्वेश्चन आता है, मैम कम एनएवी 10 एनएवी 20 एनएवी वाला म्यूचुअल फंड बताओ, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग वे of selecting a mutual fund. Okay, another कुछ अभी डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली, सॉरी, सिड साई एंड किम। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन होते हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें देखना चाहिए। अच्छा, बिफोर आई गो विद द डॉक्यूमेंट्स, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स लोग करते हैं कि अच्छा पिछले 2-3 सालों में इस इन्वेस्टमेंट ने हमें 100% का रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पास्ट में, तो 2-3 साल में तो वो अच्छा ही देगा, आगे इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लोग इसी नोशन के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, उसके 2-4 साल के रिटर्न्स देख के, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग अप्रोच एंड यू शुड नॉट बी डूइंग लाइक दैट। जो भी स्टॉक ने आप खुद ही सोचो 100% का रिटर्न दे चुका है, वो आगे जरूरी नहीं है उतना। द प्रीवियस रिटर्न्स ऑफ मे बी टू shorter period, 2-3 years का रिटर्न does not signify आगे के रिटर्न्स। ओके, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो एप्स में भी दिखाते कि अच्छा पिछले इतने साल में इतना रिटर्न दिया, डज नॉट गारंटी एनीथिंग कि वो अगले आगे के भी सालों में उतना रिटर्न देने वाला है, एंड इट्स एन एब्सोल्यूट रॉन्ग अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके, अगर आपको सच में देखना है तो आप उसके पास 10 साल में देखो, क्योंकि हो सकता है लास्ट के अभी के अगर आप लास्ट के 2-3 साल देखोगे तो कोविड के बाद मार्केट हैज बाउंस्ड बैक लाइक एनीथिंग, इट हैज डबल्ड। ओके, सो 2-3 साल में मार्केट इतना जल्दी डबल नहीं करता है, इट टेक्स टाइम। वो 2-3 साल में कोई क्रैश नहीं देखा, 2-3 साल में कुछ अपसाइकिल, सिर्फ ग्रोथ देखी है, वन साइडेड मूवमेंट देखा। ओके, मान लो अगर वो नीचे चला जाता कोविड के पहले तो क्या वो रिटर्न होता? नहीं। अगर आपको कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट पे ट्रस्ट करना, सो उसके 10 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न, 5 साल भी नहीं, 10 ही 7 साल 10 साल इतने के रिटर्न कम से कम देखने चाहिए। इफ द फंड इज न्यू देन व्हाट शुड आई डू मैम? अगर फंड को ही 3 साल हुए हैं तो मैं क्या करूं? 3 साल में तो मार्केट अच्छा ही रहा तो वो तो अच्छा ही रिटर्न दिया होगा। तब आप क्या कर सकते हो, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाते हो ना, तो ये सिड दिस स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, इसमें भी देख सकते हो, और एक अलग सेक्शन भी होता है जब भी आप ऐप देखोगे ना कि कौन से स्टॉक्स में उसने इन्वेस्ट किया। अगर उसने कोई भी रैंडम कंपनीज में किए होंगे दे मे और मे नॉट परफॉर्म, बट अगर उसने अच्छी कंपनीज में किया होगा, कोटक में किया होगा, आईसीआईसी में किया, विच आई नो कि इज अ गुड कंपनी, which we know, we understand it's a good company, then you can definitely invest in that. Okay, so अभी हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स देखनी चाहिए। ओके, सो ये सिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फंड कहाँ पैसे डालने वाला है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों वो डालना है, वो मतलब क्या वो चाहता है, उसको क्या लगता है कि अच्छा आईटी सेक्टर में डालना है, क्यों डालना है, क्या रिजल्ट है, क्या पास्ट परफॉर्मेंस है, कितना उसका प्लान है, जो फंड मैनेजमेंट की पूरी टीम है, कौन कौन से लोग हैंडल करने वाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा फंड मैनेजर होगा तभी अच्छे रिटर्न्स आने वाले होते हैं। एक्सपेंस रेशियो, जैसे मैंने बताया कि वो पूरे फंड मैनेजर भी एक फीस लेता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी भी एक फीस लेती है, ऑब्वियसली दे हैव अ वेरी बिग बिजनेस टू रन, दे नीड सम मनी, नथिंग इज डन फॉर फ्री। सो वो कितना होता है, मैक्सिमम दे कैन चार्ज फॉर 2% एज पर सेबी गाइडलाइंस। कितना लोड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, 2 तरीके के लोड्स होते हैं, एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड।
As of now, SEBI has banned no investment fund is taking entry load. Entry load क्या होता है? पहले के जमाने में क्या होता था ना कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते थे ना, तो एंट्री की एक फीस होती 1%, मैक्सिमम 1% होती थी। मान लो कि आपने 1 लाख रुपए डाले, ओके, तो उसमें वो लोग 1000 रुपीज कट कर लेते थे, 99,000 ही आप डालते थे। मतलब वो एक एंट्री लोड, एंट्री करने का एक लोड है, ओके, तो वो अभी हटा दिया कि अगर आपने 1 लाख डाले तो बकायदा 1 लाख ही इन्वेस्ट होते हैं, पहले वो कट के इन्वेस्ट हो, ठीक है। अभी एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड क्या होता है ना कि कुछ कुछ फंड्स का होता है कि आप तुरंत पैसा ना निकालो। अभी अभी उसने आप भी मैंने दिया, ठीक है, लो भाई मेरे पैसे को डालो, और फिर मैं कल ही निकाल लूं, 10 दिन बाद ही निकाल लूं, तो फिर वो हाउ विल दैट फंड वर्क? सो फॉर दैट नो दे हैव पुट एन एग्जिट लोड, मैक्सिमम दे कैन कट इट थ्रू 1% ओनली। सो क्या होता है, कुछ कुछ फंड से अब बहुत सारे फंड्स में नहीं होते हैं, ये सब यूजुअली इक्विटी फंड्स में होते हैं। अगेन बहुत सारे फंड्स के भी अलग अलग रूल्स होते हैं कि अच्छा, यू कैन विड्रॉ एटलीस्ट 10%, अगर आप निकालो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 50%, कुछ सबके अलग अलग होते हैं। यूजुअली 1 साल के पहले अगर आप निकालते हो, अपने मान लो आज डाला और आज से 1 साल पहले निकाला, तो यूजुअली 1% कटता है, अदरवाइज वो नहीं कटता है। तो सब फंड्स के अलग अलग होते हैं, बट एग्जिट लोड स्टिल एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन द फंड। फिर फीस कितनी है, वही आपके रेशियोज कितने हैं, लिक्विडिटी रेट मतलब कितना फास्ट वो विड्रॉएबल है, ठीक है। फिर रिस्क फैक्टर क्या होता है, क्या रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उसने क्या कुछ टैक्स एग्जेम्पशन है, नहीं है, क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है, कितना टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितने आपके होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितने होते हैं, सारी चीजें वहां पे मेंशन। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट साइड, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इनिशियल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी के बारे में रहता है, इसमें ट्रस्टीज के बारे में होता है, कौन सा कंपनी इसको मैनेज कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है, पूरा प्रोस्पेक्टस होता है, मतलब पूरी डिटेल होती है कंपनी के बारे में, फंड के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, ये सारी चीजें, सारी लीगल कंप्लायंसेस, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या वो सही है नहीं, ये सारी चीजें वो रहती है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू कैन गो थ्रू। अभी किम इज की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ओके। सो किम में क्या होता है कि ये जो भी क्या है ना, जो सिड है, कंसाइज वर्जन ऑफ सिड। सिड क्या था, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो दिस एक्चुअली क्या है ना, ये जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत बड़ी होती है, ये 100 पेजेस, 150 पेजेस के लिए। डू यू रियली हैव टाइम टू रीड 150 पेजेस? आई डोंट थिंक सो। अभी डालना ही अपन को खाली 1000 रुपए, 5000 रुपए, अभी इसके लिए कोई 1500, सॉरी 150 पन्ने की कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं पड़ेगा। सो दैट इज वाई उसी के लिए गवर्नमेंट ने किम निकाला एक, मतलब कि उस पूरे डॉक्यूमेंट्स की समराइज फॉर्म, कि इन अ नटशेल व्हाट इज गिवन। ओके, मेरे को जानना है एक्सपेंस रेशियो कितना, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स जाननी, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी इस स्कीम में रहती है। सो दिस वाज ऑल, एंड ये पूरी चीज की सिड एंड साई बोथ की ये समरी रहती है बेसिकली, ठीक है। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे? सो यू कैन जस्ट टाइप ऑन गूगल सिड एंड साई, एंड यू कैन गो ऑन सेबी की वेबसाइट। वहां पे सारे जितने भी फंड, ओके, चाहे वो आईसीआईसी का हो, एलआईसी का हो, एचडीएफसी बैंक का, जिसका भी हो, वो यहाँ पर पूरा मेंशन रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड एंड हाउ यू कैन सेलेक्ट दिस म्यूचुअल फंड, कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो अभी आपके पास मान लो 5000 रुपए हैं, आप हर महीने कर सकते हो, और आपकी उम्र भी 20-25 साल है, यू हैव सो मच ऑफ टाइम, ओके, तो आप किस में डालोगे पैसे? स्मॉल कैप में डालोगे। क्यों? Because you are young, you have time to take the risk appetite, you have time to earn money, okay. So usually younger generation who have time, who have risk appetite, should go with equity schemes, एंड इक्विटी में भी कौन सा, स्मॉल कैप, मिड कैप डाल जा सकते हो। अगर आप थोड़े ओल्ड हो, ठीक है, या फिर आपको मम्मी पापा के पैसे को इन्वेस्ट कराना है, तो यू कैन अगर आप इक्विटी में ही डालना चाहते हो, तो आप किस में डाल सकते हो? मिड कैप में डाल सकते हो, लार्ज कैप में डाल सकते हो, या फिर मल्टी कैप ऑल्सो इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ओके। देन और भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। अगर आपको टैक्स सेव करना, आप अर्निंग हो, आपको क्लेम करने, तो आप ईएलएसएस में भी डाल सकते हो, उसमें रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव अ टाइम टेन्योर, ओके, लॉक इन पीरियड 3 साल का, 3 साल तक आप निकाल नहीं सकते हो वो पैसे के लिए। देन अभी अगर आप बहुत ओल्ड, आपके मान लो ग्रैंड पेरेंट्स या जो रिटायर्ड है, ओके, एंड दे आल्सो वांट टू अर्न लिटिल मोर देन द मार्केट, तो वो लोग किस में डाल सकते हैं? डेट फंड्स में डाल सकते हैं पैसे। अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए डालना है, मान लो 2-3 महीने पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट यू हैव गॉट सम बिग अमाउंट, सो यू कैन इन्वेस्ट इन मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड। अभी यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर वो 2-3 महीने के लिए ही होता है, तो उसमें एग्जिट लोड, यूजुअली मनी मार्केट में एग्जिट लोड नहीं लगता है, या डेट फंड्स में भी एग्जिट लोड नहीं लगता है, बिकॉज द पर्पस इज शॉर्ट, ओके।
exit load is mostly for what do I call is for equity schemes. Okay, so I hope इसमें कुछ नहीं होगा and we'll end with the session. Thank you, ma'am. On behalf of this organizing committee, I like to express my hearty vote of thanks to our excellent speaker, Ma'am Apurva. And today we got the opportunity to listen such an interesting and thought-provoking discussion on how to select a mutual funds. So she skillfully imparted her knowledge, leaving us with a insightful conclusion and motivational concepts. And her interesting presentation captured our attention and motivated all of us to learn more. So we appreciate the effort she put into preparing the enlightenment session. Ma'am, I would like to ask that are there any specific mutual funds that you would recommend based on the current market trends? See dear, again it depends who is investing. Okay, otherwise I'll tell you my funds that I'm investing in. So like my horizon is a long term horizon also. So one of the fund that I'm been investing and I feel the portfolio is also nice is Kotak Small Cap Fund, Edelweiss Small Cap Fund. Mostly these all are small caps only because the horizon is long. Okay, but if you also want to go for a safer, maybe safer investment option, then Edelweiss ka mid cap is also very good. HDFC's small and mid cap. The name of the fund is only HDFC small and mid cap. So that is also a very good fund that you can invest. If you guys think that कुछ thematic में जाना है, maybe infrastructure is going to do what I feel. I'm bullish on the sector. So there are some infrastructure fund as well. You can definitely go with that. Okay, you can just search ki best infrastructure fund. उसका last के कुछ years past returns देख लो. If it is more than 15-18%, it's good to go with. Okay, ICAC, there's one fund of ICAC. I don't remember the exact name, but it's a good fund as well. Okay. Okay, thank you, ma'am. Most. Do anyone have any question? Okay, thank you, ma'am, for addressing this question. And additionally, I want to thank everyone for the attentive audience for their questions. And especially for active involvement or listening. This event is considerably more meaningful because of your participants, and all good things eventually end. And I considered everyone as fortunate that they become a part of this workshop, which was full of knowledge.